So hello students, today we are going to start exercise 7.1 of class 10. So basically I'm starting exercise 7.1 of class 10 book. The reason is both class and ninth and 10th have the same topic, which is how to find the distance between the 2 points. And there is one concept which is based on the midpoint formula that will come in the next exercise. So here in exercise 7.1, the first question is find the distance between the 2 points. The points are 2, 3 and 4, 1. So how to find the distance? Let us assume that this is point A and this is point B. So how to find the distance between them? This is, you remember the formula, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So this is 4 minus 2 whole square plus 1 minus 3 whole square. So this is 4 minus 2, 2 square plus minus 2 square. So this is 4 plus 4. This is root 8. So root 8 we can write 2 into 2 into 2. So 1 time 2 out, 2 root 2 units. So this is the distance between the 2 points. And the next is, we have this next point is minus 5, 7 and minus 1, 3. So how to find the distance between these 2 points? It is again, let us assume first point is A, second is B. So let me clarify where is x1, x2 and y1, y2. So this is x1, y1, x2, y2. So when we are finding the distance, x2 minus x1 means minus 1 minus of formula, ये minus question का whole square plus 3 minus 7 whole square. ये हो गया minus 1 plus 5 whole square plus minus 4 whole square. ये हो गया 4 square plus minus 4 square is 4 square. So this is 16 plus 16. This is root 32. And root 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 into 4 into 2. So this is 4 root 2 units. Right? So now the next part is part 3, which is about AB minus A minus B. Okay. So this is third part. AB minus A minus B. So how to find the distance between these 2 points? Minus A, ये वाला minus formula and A plus minus B square. So this is minus 2A square plus minus 2B square. So this is minus 2A का square is 4A square plus 4B square. एंड हम कॉमन लेंगे 4, अंदर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर units. So in this way we have calculated the distance between the 2 points. ठीक है? So now the next question है हमारा question number 2. Find the distance between the point 0, 0 and 36, 15. So find the distance between 0, 0. This is question number 2. 0, 0. And the other point is 36, 15. So this is 36, 15. Again, let us assume that this point is A, this is B. So how to find the distance between the 2 points? This is 36 minus 0 whole square plus 15 minus 0 whole square. So this is, it will become 36 into 36, 36 square plus 15 square. So this is 1296 plus 225. So this will become 1521. So what is the square root of 1521? 1521 का square root is 39. How to find the square root? 1529.
2 1, sorry. So this is 3 3s are 9. लॉन्ग डिवीजन से कर रहे हैं. सो 3 + 3 इज 3 + 3 कितना होगा यहाँ पे, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड करेंगे. 3 + 3 इज 6. सो यहाँ पे आएगा 3 + 3 6. 3 3s are 9. रिमाइंडर इज 6. 21 बोरो करेंगे. सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 69 इंटू 9 इज 621. सो स्क्वायर रूट ऑफ 1521 इज 39 यूनिट्स. सो इसी तरह हमने कैलकुलेट किया डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. तो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज determine the points 1 5 2 3 and -2 -11 are collinear. So the points are, determine the points 1 5 2 3 and -2 -11 are collinear. मैंने क्या बताया था collinear का, if distance between any two points is equal, the sum of distance between any two points is equal to the third point. मतलब अगर हम ए बी कैलकुलेट कर रहे हैं, बी सी कैलकुलेट कर रहे हैं और सी ए कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई भी दो डिस्टेंसेस का टोटल तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है. कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे है. सो हमारे पास ए बी है 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर. ये होगा 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर. ये होगा 1 + 4 √5. नेक्स्ट है -2 -2 स्क्वायर प्लस -11 -3 स्क्वायर. ये कितना होगा, -4 स्क्वायर प्लस -14 स्क्वायर. ये कितना होगा, 16 + 196. एंड व्हाट इज 16 + 196, ये हो जाएगा 212. थर्ड पॉइंट आएगा हमारे पास सी ए. सी के कोऑर्डिनेट्स है -2 -11 और ए के कोऑर्डिनेट्स है 1 5. तो ये हो जाएगा 1 -2, ये माइनस फॉर्मूला का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस फॉर्मूला का -11 उसका खुद का साइन. सो दिस इज 1 + 2 होल स्क्वायर प्लस 5 + 11 होल स्क्वायर. ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर. सो दिस इज 9 + 16 स्क्वायर. तो 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256. सो 256 प्लस 9 हो जाएगा 265. सो कोई भी दो स्क्वायर रूट का टोटल इज नॉट इक्वल टू द थर्ड वन. ये हमें चेक करना भी है तो हम कैसे कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 कितना होगा, 2.3. स्क्वायर रूट ऑफ 212 कितना आएगा, 14.56. और स्क्वायर रूट ऑफ 265 आएगा 16.27. तो अब हम चेक कर सकते हैं कि ये दोनों छोटी साइड्स हैं, इनको अगर टोटल करें 14.56 प्लस 2.3, ये कितना आएगा, 16.86. और थर्ड साइड है 16.27. सो कोई भी दो छोटी साइड्स का टोटल थर्ड डिस्टेंस के इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है. सो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. जिसे हम और डिटेल लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी. ठीक है. अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. हमारे पॉइंट्स कौन से हैं, 5 -2 6 4. ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पॉइंट्स जो हैं वो हैं 5 -2 6 4, 5 -2 6 4 और थर्ड पॉइंट है 7 -2. 7 -2. हमें चेक करना है whether these points
are the vertices of isosceles triangle। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? आइसोसेलेस ट्राइंगल कहता है कि लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी सेम, एनी टू साइड्स। सो अगर मैं अज्यूम करूं ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो हम तीन साइड्स का डिस्टेंस निकालेंगे ए बी, विच इज 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला। This is 1 square plus 4 plus 2 square. This is 1 plus 6 square. This is 1 plus 36। ये आ जाएगा 37 यूनिट्स। ठीक है, बी सी कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 6 - 5, सॉरी, बी सी आएगा 7 - 6। सो ये आएगा हमारे पास 7 - 6 स्क्वायर प्लस -2 - 4 स्क्वायर, ये कितना होगा? 1 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस 36 रूट 37। देखो, दो डिस्टेंस निकाल के पता तो चल गया कि दो साइड सेम आ रही हैं, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। पर कई बार क्वेश्चन में अगर आपसे इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में पूछा जाए तो थर्ड साइड भी कैलकुलेट करते हैं। तो अभी दो से हमें पता चल गया कि वो आइसोसेलेस है। सो ए सी के लिए 5 - 2 7 - 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2 -2 होल स्क्वायर, ये होगा 2 स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 0 रूट 4, ये आ जाएगा 2। यस, गिवन vertices are of isosceles triangle where, अब हमारी कौन सी दो साइड सेम आई हैं? ए बी एंड बी सी। ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। दिस क्वेश्चन बेसिकली कम्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, या केस स्टडी के फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आता है। सो ये है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी। आई होप सबको पॉइंट नजर आ रहे हैं। पॉइंट्स ए बी सी, ये रहे ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो Champa and Chameli walk into the class, and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Do you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. तो दो फ्रेंड्स में आपस में डिस्कशन हो रहा है कि अच्छा, अब ये स्क्वायर बन रहा है या नहीं, कैसे चेक करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, फिर उसके बाद वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन बी सी, फिर उसके बाद वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ये, और लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ए डी। ठीक है, तो ये दो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो उसके लिए सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, ए और डी के कोऑर्डिनेट्स। सो ए और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यहाँ पे? तो मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ पेन का लिखने के लिए। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये देखो 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ जाके रुक रहे हैं? 4 पे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 3, 4। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ये वाला पॉइंट है ए बी सी, ये हो गया हमारे पास डी। बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 6, 7। सी के कोऑर्डिनेट्स 9 से स्टार्ट हो रहे हैं, 4 पे रुक रहे हैं, 9, 4। और डी के कोऑर्डिनेट्स 6, 1। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है अब ए
बी, ए बी, बी सी, सी डी और डी। ठीक है, तो उसके लिए ए के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं हम अब यहाँ पे। ओके, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 3, 4 and coordinates of B are coordinates of B are 6, 7. So AB का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे 6 - 3 स्क्वायर प्लस 7 - 4 स्क्वायर, ये आएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 9 + 9 √18। BC का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे 6, 7, 9, 4। तो इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए 9 - 6 स्क्वायर प्लस 4 - 7 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, अगेन 9 + 9 √18। सी डी का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए 9, 4, 6, 1, 6 - 9 स्क्वायर प्लस 1 - 4 स्क्वायर, दिस इज -3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, दिस इज अगेन 9 + 9 √18। डी ए, डी ए का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए डी के कोऑर्डिनेट 6, 1, ए के 3, 4, तो ये हो जाएगा 3 - 6 स्क्वायर प्लस 4 - 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अगेन 9 + 9 √18। अब इसके साथ में लिख देंगे यूनिट्स, UNITS। ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें नहीं पता वो कितने डिस्टेंस पे हैं, मीटर पे हैं, कितने मीटर्स पे हैं, तो UNITS इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग द डिस्टेंस। अभी दे आर सेइंग दैट चारों फ्रेंड सेम डिस्टेंस पे बैठे हैं, तो चारों साइड्स की लेंथ सेम आई है। अगर चारों साइड्स की लेंथ सेम है, वी कैन नॉट से दैट इट इज अ स्क्वायर। अभी ये बना रोहम्बस, क्योंकि रोहम्बस और स्क्वायर दोनों की चारों साइड सेम होती है। अगर हमें चेक करना है कि ये स्क्वायर है, उसके लिए वी हैव टू चेक द डिस्टेंस बिटवीन देयर डायगोनल्स। ठीक है, तो डायगोनल्स के बीच में डिस्टेंस चेक करने के लिए क्या करेंगे, वी विल फाइंड ए सी। ए के कोऑर्डिनेट्स 3, 4, सी के कोऑर्डिनेट्स 9, 4, so this is 9 - 3 square plus 4 - 4 square, this is 6 square plus 0 square, 6 square का स्क्वायर रूट कितना होगा 6, एंड द लेंथ BD के लिए B के कोऑर्डिनेट 6, 7, D के कोऑर्डिनेट 6, 1, ये हो जाएगा 6 - 6 स्क्वायर प्लस 1 - 7 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अगेन 36 का स्क्वायर रूट 6 यूनिट्स। तो अब हम देख सकते हैं कि चारों साइड्स की लेंथ AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स सेम है, एंड AC इक्वल टू BD, लेंथ ऑफ डायगोनल्स, length of diagonals is also same. So therefore A, B, C, D is a square. अगर आप सिर्फ चारों साइड्स कैलकुलेट करके छोड़ देंगे तो वो स्क्वायर की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं करेगा, इट विल बी अ rhombus, राइट। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज अबाउट नेम द टाइप ऑफ quadrilaterals formed if any by the following points and give reason for your answer। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ नोट लिखवाऊंगी यहाँ पे। हाउ टू चेक कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल को एक स्पेसिफिक नेम देने के लिए। अगर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल then it is a parallelogram।
अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल and diagonals equal, then it is a rectangle. If all sides equal, then it is a rhombus. If all sides equal and diagonals equal, then it is a square. तो आप पूछेंगे व्हाट अबाउट द डायगोनल्स इन पैरेललोग्राम एंड रोम्बस? पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते एंड सिमिलरली रोम्बस में भी डायगोनल्स इक्वल नहीं होते. अगर इक्वल हैं तो वो नाम चेंज होगा. पैरेललोग्राम के इक्वल हैं तो इट विल बिकम रेक्टेंगल, एंड अगर स्क्वायर के इक्वल हैं, अगर एक क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल्स इक्वल हैं, देन इट विल बिकम अ स्क्वायर. ठीक है. आप पाइथागोरस थ्योरम से भी चेक कर सकते हैं कि अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में अगर आप डायगोनल ज्वाइन करते हैं, इफ द स्क्वायर ऑफ दीज टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड, मतलब अगर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस इज अ रेक्टेंगल ए बी सी डी. इफ कोई भी दो ट्राइंगल ले सकते हैं, दिस इज ट्राइंगल नंबर 1, दिस इज ट्राइंगल नंबर 2. अगर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर आ रहा है, और इफ ए डी स्क्वायर प्लस BC square is equal to AC square आ रहा है, we will say that it is a rectangle. As same cases with square. अगर पाइथागोरस थ्योरम दोनों ट्राइंगल्स में सेपरेटली किसी भी एक ट्राइंगल में अप्लाई हो रही है, देन इट विल बी अ स्क्वायर. तो हम क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है -1 -2 1 0 -1 2 -3 0. तो नेम देंगे A B C D. तो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ए बी. ये हो जाएगा 1 माइनस फॉर्मूला का और एक माइनस क्वेश्चन का स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2 स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 1 + 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर. दिस इज 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. दिस इज 4 + 4. दिस इज √8. ठीक है. फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास बी सी कैलकुलेट करने के लिए -1 -1 स्क्वायर प्लस 2 -0 स्क्वायर. दिस इज -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. दिस इज 4 + 4 √8. फिर आ जाएगा सी डी कैलकुलेट करने के लिए -3 -1 स्क्वायर प्लस 0 -2 स्क्वायर. ये हो जाएगा -3 + 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर. दिस इज -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर. ये हो जाएगा 4 + 4 √8. डी ए कैलकुलेट करने के लिए डी के कोऑर्डिनेट्स -3 0, ए के कोऑर्डिनेट्स -1 -2. ये होगा -1 माइनस ऑफ -3 स्क्वायर प्लस -2 -0 स्क्वायर. तो ये हो जाएगा -1 + 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर. ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर. दिस इज 4 + 4 √8. अब हम लगा देंगे यूनिट्स, UNITS. ठीक है. अब हम देख रहे हैं कि लेंथ ऑफ और फोर साइड्स इक्वल. तो अगर चारों साइड्स इक्वल हैं तो क्या बनेगा? वो रोम्बस. अब हम चेक करेंगे डायगोनल्स. तो डायगोनल्स कैसे होंगे? अगर ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, अब हम क्या चेक करेंगे? ए सी एंड बी डी. अगर तो ए सी इक्वल टू बी डी आएगा तो क्या बनेगा? वो स्क्वायर. और अगर नहीं इक्वल होगा तो क्या बनेगा? वो रोम्बस. तो अब लेंथ ऑफ ए सी ये हो जाएगा -1 -1 स्क्वायर. मैं यहाँ लिख देती हूँ ए के कोऑर्डिनेट्स -1 -2, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -1 2, प्लस 2 -2 स्क्वायर. तो ये हो जाएगा -1 + 1 स्क्वायर प्लस 2 + 2 स्क्वायर
तो ये कितना हो गया 0 प्लस 4 स्क्वायर, हो जाएगा 4 यूनिट्स। अब हम करेंगे बी डी का डिस्टेंस कैलकुलेट। बी के कोऑर्डिनेट्स 1,0, डी के कोऑर्डिनेट्स -3,0। ये हो गया -3 -1 स्क्वायर प्लस 0 -0 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -4 स्क्वायर प्लस 0। दिस इज 4 का स्क्वायर इज 4 यूनिट्स। अब देखो डायगनल्स भी सेम है, सारी साइड्स की लेंथ भी सेम है, तो सिंस length of all sides and length of both the diagonals is same, so given quadrilateral is a square, is a square। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर उसके बाद करेंगे हम, उसके बाद करेंगे हमारा नेक्स्ट जो क्वाड्रिलेटरल है, ये है सेकंड, -3 5 3 1 0 3 -1 -4। फिर से ए बी सी डी। ए बी कैलकुलेट करेंगे, 3 -3 स्क्वायर प्लस 1 -5 स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 + 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। दिस इज 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो दिस इज 36 + 16, कितना हो जाएगा √52 यूनिट्स। बी सी 0 -3 स्क्वायर प्लस 3 -1 स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। दिस इज 9 + 4 √13 यूनिट्स। सी डी -1 -0 स्क्वायर प्लस -4 -3 स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर। दिस इज 1 + 49, दिस इज √50। फिर आ जाएगा हमारे पास डी ए। डी ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -1 -4, ए के हैं -3,5। तो ये हो जाएगा -3 -1 स्क्वायर प्लस 5 -4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 + 1 स्क्वायर प्लस 5 + 4 स्क्वायर। सो दिस इज 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 + 81, तो ये हो जाएगा 97 यूनिट्स। ठीक है, सो इसके बाद इसमें हम देख रहे हैं दैट दी गिवन क्वाड्रिलेटरल इज नॉट सेटिस्फाइंग एनी ऑफ द कंडीशंस। ये जो हमने साइड्स कैलकुलेट की हैं, ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम बोलेंगे दैट ए बी सी डी इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जो मैंने कंडीशंस लिखवाई थी उनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। फिर है हमारे पास 4 5, ये जो थर्ड पार्ट है, दिस थर्ड पार्ट, ये वाला। सो इट इज 4 5 7 6 4 3 एंड 1 2। हमें चेक करना है दैट इज इट फॉर्मिंग एनी सॉर्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी। ए बी कैलकुलेट करेंगे, AB is 7 -4 स्क्वायर 6 -5 स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। आई होप आप लोग साथ में नोट्स बना रहे हैं। अगर नोट्स बनाएंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी तो डेफिनेटली आप और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस
प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे इस कॉन्सेप्ट में और ज्यादा क्लैरिटी आती जाएगी। बी सी मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो इजी रहेगा। 4 - 7 square plus 3 - 6 square. So this is -3 square plus -3 square. This is 9 plus 9 root 18 units. Distance formula CD. This is 1 - 4 all positive हैं तो comparatively question करना easy है, कोई negative term नहीं है इसमें। This is -3 square plus -1 square. ये आ जाएगा 9 plus 1 root 10 units. अब क्या है डी ए। डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 5। तो ये हो जाएगा 4 - 1 square प्लस 5 - 2 square। ये हो जाएगा 3 square प्लस 3 square। दिस इज 9 plus 9 root 18। जैसा कि हम देख रहे हैं दैट द लेंथ ऑफ टू साइड्स इज सेम। √10 units, √10 units ये सेम है। तो अगर हम इसका क्वाड्रिलेटरल बनाएं तो मतलब ए बी के सामने कौन सी साइड है सी डी। एंड √18 इसको मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ। दिस वन √18 एंड √18 ये दोनों सेम है। तो दैट मीन्स बीसी के सामने कौन सी साइड है डी है। तो अगर ऑपोजिट साइड इक्वल आए जैसे मैंने पहले बताया था तो क्या बनेगा पैरेललोग्राम। लेकिन अब हम चेक भी करेंगे। क्या चेक करेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल्स। सो डायगोनल कौन सा डायगोनल डायगोनल अगर मैं इसका एक रफ स्केच बनाऊं तो क्या बनेगा यहाँ पे ये देखो ए बी सी डी। किसकी लेंथ चेक करनी है ए सी और बी डी। डायगोनल ए सी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे यहाँ पे 4, 5 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 3। 4, 5, 4, 3 चेक करते हैं। सो दिस इज 4 - 4 square प्लस 3 - 5 square। ये हो जाएगा 0 square प्लस -2 square। ये हो जाएगा 4 विच इज 2 units। फिर आ जाएगा डायगोनल बी डी। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है। सो दिस इज बी डी। डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 7, 6। डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2। सो दिस इज 1 - 7 square प्लस 2 - 6 square। ये हो जाएगा -6 square प्लस -4 square। सो दिस इज 36 प्लस 16। ये हो जाएगा 52 यूनिट्स। अब हमने क्या देखा लेंथ ऑफ डायगोनल सेम नहीं है तो हम क्या लिखेंगे सिंस ऑपोजिट लेंथ ऑफ ऑपोजिट sides is same, so given quadrilateral is a parallel. Right? Is it clear till here? Okay, now question number 7 is find the point on x-axis. x-axis पे point आपको कैसा मिलेगा x-axis पे कौन जीरो होता है y। तो x-axis पे जो point होगा वो कैसा होगा x, 0 is equidistant। equidistant मतलब equal distance from this and this point। अगर इसको मैं ले लूं a इसको ले लूं b मतलब कोई पॉइंट है जो x एक्सिस के ऊपर है। तो x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा वो कैसा होगा ये x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है इसको ले लेते हैं p। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, 0। ये दो पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हैं। वो हमारे पॉइंट्स कौन से हैं a विच इज 2, -5 और b विच इज -2, 9। ठीक है। इक्वी डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस पे है मतलब पी ए इक्वल टू पी
बी। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स कॉमा जीरो, ए के कोऑर्डिनेट 2 - 5। यहाँ लिखने से क्या होगा, गलती होने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि पॉइंट्स हमारे सामने लिखे होंगे तो माइनस अप्लाई करना, डिस्टेंस फॉर्मूला माइनस करना इजी होगा। -2, 9। सो दिस इज ओके, 2 - x² प्लस -5 - 0²। यहाँ क्या आएगा, -2 - x² प्लस 9 - 0²। तो सबसे पहले ये रूट कैसे हटाएंगे हम, रूट हटाने के लिए ये वाला रूट जो दिया हुआ है, ये कैसे हटाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर आप स्क्वायरिंग करोगे दोनों तरफ तो बेसिकली मैं रफ में बता रही हूँ, जैसे रूट एक्स का स्क्वायर है कितना होगा, एक्स, रूट वाई का स्क्वायर कितना होगा, वाई। जब आप स्क्वायर रूट नंबर का स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 - x² प्लस -5²। यहाँ क्या आएगा, -2 - x² प्लस 9²। ठीक। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर आप स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। तो सेकंड कॉन्सेप्ट एक मैं और बताने वाली हूँ, 2 - x² प्लस 25 इज इक्वल टू, ओके, हम -2 - x। ठीक है, इसमें से अगर आप माइनस कॉमन लेंगे बाहर तो क्या आएगा अंदर, -2 विल बिकम +2, -x विल बिकम +x। ठीक है, अब मैं अगर इसका स्क्वायर हो मेरे पास तो क्या होगा, जो माइनस था उसका स्क्वायर होके वो प्लस हो जाएगा और 2 + x का स्क्वायर हो जाएगा। सो जब दो नंबर इकट्ठे माइनस में हो और उनका होल स्क्वायर हो तो माइनस कॉमन लेंगे, उसका स्क्वायर हो जाएगा और नंबर बचेगा ब्रैकेट में 2 + x होल स्क्वायर। तो -2 - x को मैं लिखूंगी 2 + x होल स्क्वायर प्लस 81। अब ये कितना होगा, दिस इज a - b होल स्क्वायर विच इज a² प्लस b² -2ab। तो ये कितना होगा, 2² प्लस x² -2 × 2 × 2 x प्लस 25। ये क्या, यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर कितना होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा 2² प्लस x² प्लस 2 × 2 × x प्लस 81। ठीक है, तो ये हो गया 4 + x² -4x प्लस 25 -4 -x² -4x -81 = 0। मैंने सारा राइट साइड वाले टर्म्स लेफ्ट साइड ट्रांसपोज किए, x² कैंसिल, 4 कैंसिल, सो -4x -4x -8x -81 and +25 will be -56। ठीक है, this is -56 equal to 0. So -8x equal to 56. X is equal to 56 over -8. So it will be -7. So the required point हमने क्या लिया था? Hence the required point is आपने क्या लिया था, x, 0, वो क्या हो जाएगा, -7, 0। So this is the answer, right? अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट्स। मतलब दो पॉइंट है, एक p है एक q है, p के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3, q के कोऑर्डिनेट्स हैं 10, y, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 यूनिट्स। सो पी क्यू is 10. So this is 10 - 2 square plus y minus -3 का स्क्वायर is equal to 10। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया था, जब आप स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये कितना होगा, जब आपने स्क्वायर रूट का स्क्वायर किया, दिस इज 8² प्लस y प्लस 3²
तो दूसरी तरफ भी स्क्वायर होगा, वो होगा 10 का स्क्वायर। तो ये होगा, अब स्क्वायर रूट नहीं लगेगा, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने लगाया, क्योंकि कैल ये हो जाएगा 64 प्लस y+3 का स्क्वायर कितना होगा, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3। a plus b whole square is a square plus b square plus 2ab. 10 square will be 100. Okay. तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 प्लस 64 माइनस 100 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये कितना हो जाएगा 73 माइनस 100, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, वाई स्क्वायर, कौन से दो नंबर है जिन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, तो -27 आएगा और सम आएगा 6। सो इट इज +9y -3y -27 इक्वल टू 0। रीग्रुपिंग करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस -3y -27 इक्वल टू 0। y कॉमन y प्लस 9 -3 कॉमन y प्लस 9। अब इन दोनों में से y प्लस 9 कॉमन, दिस इज y -3 इक्वल टू 0। तो जब y प्लस 9 0 होगा तो y की वैल्यू आएगी -9। हम लिखेंगे ईदर और, क्योंकि प्रोडक्ट y प्लस 9 और y -3 का कितना है 0, तो या तो y प्लस 9 0 होगा तो y की वैल्यू आएगी -9, या y -3 0 होगा तो y की वैल्यू आएगी 3। तो हमें पूछा गया था फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, सो द वैल्यूज ऑफ y आर -9 एंड 3। ठीक है।